Good morning, class. तो हम लोग पेबैक पीरियड हो गया था मेरे ख्याल से, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी हो गया था। न्यूमेरिकल्स उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं आएगा भी, तो तुम लोग बता दोगे, उससे कोई इशू नहीं। जब बुक मिलेगी ना, तो फिर आई विल, जो उसमें 2-3 न्यूमेरिकल होगा उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो दोनों टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा, पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों जो टेक्निक्स है वो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग है। क्या है? स्टैंड बंद करो। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग मतलब इसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट नहीं करते। वी डू नॉट एडजस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. We simply focus upon how much cash we are getting over a given time frame and make a comparative analysis that at what point of time our cash outflow becomes equal to our cash inflow. This was in case of payback period, and in case of accounting rate of returns, we'll look into the profits in terms of percentage of the total investments. How much investments we have made and how much profit we are earning on an annualized basis. And on that basis, we need to calculate the percentage of return or yield on our investments, also known as average rate of return or accounting rate of return or return on investments or return on capital employed, whatever you may call it. So, अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, जो कि ज्यादा पॉपुलर तरीका है आज के बहुत सारे बिजनेसेस को एनालाइज करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए, कि कहाँ पर हम लोगों को पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, तो हर एक बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होगा, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रेज करने के लिए, उस कैपिटल को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बियर सम कॉस्ट। सर आइए, बात होगा। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि now we'll be moving on to the discounting techniques of capital budgeting, wherein we will be adjusting the time value of money. Now will not be focusing only upon how much we are receiving, but also what quality of money or what quality of cash inflow we are getting.
That is, we associate time with the cash values or cash inflows or cash outflows for that matter. Uh, so because we are associating time with the cash inflows or cash outflows, we are associating two time frames. One is the present time frame and the other one is the future time frame. So all the cash inflows, once you are invested into a project at present or once you are going to invest, is a present cash outflow. Whereas this present cash outflow is expected to generate certain cash inflows in times to come, referred to as future cash inflows or future value of cash inflows. So for selecting or identifying a particular project, what you need to do is you need to either convert the present value into the future value, or you need to convert the future value into their present values. Either way around can be done. It depends upon your convenience. But generally, what is done is that we convert the future values into their present values so that we can analyze comparative the, the comparisons in a better way and come to a decisive result or decisive uh, decision whether to invest or abstain from investing. Abstain means not to invest or to restrict from investing. So there are several methods of capital budgeting as far as discounting techniques are concerned. Starting from the net present value method, you have uh, profitability index, you have IRR, that is internal rate of return, you have yield to maturity. These are four different methods by which you can identify the project on the basis of time and tested values. So today our focus will be on net present value, NPV. What? NPV, net present value. Now, what is this NPV, net present value? And how to accept or reject a particular project, or on what basis you should be accepting or rejecting a particular project. So when you talk about the net present value, the net present value, it is the difference. It is the difference between the present value of cash inflows, present value of all future cash inflows, and the present value of cash outflows. What I said, net present value is the difference between the present values of all future cash inflows and the present value of cash outflow. If this difference is positive, if this difference is positive, the project needs to be accepted. If the difference is negative, that is, if the present value of cash outflow is more than the present value of all future cash inflows, then the project is said to be having a negative cash flow, needs to be rejected. Outright rejection has to be there. And finally, if the NPV is zero, if the NPV is zero, that is, the present value of cash outflow is equal to the present value of all future cash inflows is equal to the present value of all future cash inflows. The NPV is said to be zero in that case. And once the NPV is zero, that is neither positive nor negative, now it is up to you to decide whether you should be accepting that project for investments or not. It is totally up to you. But ideally, it is advisable that projects having a positive cash flow or positive NPV should always be accepted. Otherwise, projects will be rejected or should be rejected. Am I clear? Now, um, for the purpose of converting, the future values of cash inflows into their present value, we require a rate. And that rate upon which you are converting the future values of cash inflows into their present value is known as rate of discounting or discount rate. Known as what? Discount rate. As you have already studied, the discount rate makes adjustments for two things. One is the uncertainty associated, and the other one is the how much return that you want to
get out of such investments, right? So this discount rate helps you, this discount rate helps you to arrive at probably an ideal cash inflow or the present value of ideal cash inflow. Now, um, as we also studied that if the uncertainty is high, if the uncertainty is high, the risk increases, and as the risk increases, the return also increases. Therefore, discount rate will be higher, will be higher. Whereas vice versa to this, if a project has a lower risk, if the project has a lower risk, that is the uncertainty is less, or the volatility or the beta in the project is less, then the return expected would also be less. And when both these are less, it is obvious that the rate of discounting would also be smaller, right? So this is how things work out. Now, I also talked about how to fix the discounting rate. According to some, this discounting rate is referred to as hurdle rate. According to some, it is also equivalent to the cost of capital. To some, it is the required rate of return. Required rate of return is actually the summation of the cost of capital, or the return which you are expecting plus the risk premium that you are having, or the risk-free rate plus risk premium. Risk-free rate means the minimum return beyond which you are not going to invest. That is, the yield on government bonds is called the risk-free rate, plus the risk premium, which very much depends upon the extent of or the degree of risk associated with the business, right? So for all the given projects, risk-free rate are bound to be common, and the risk premium is going to change. More risky projects will have a higher risk premium, and a less risky project will be having a lower risk premium. And based on this changes or the degree of risk, the risk premium changes, which causes the change in the required rate of return or the discounting rate, right? So discounting rate basically refers to the adjustments in respect of return expected and the degree of uncertainty or risk associated with a given project, right? Higher the higher these two, higher are these two, the discounting rate will be higher, and vice versa. If there is low risk, low return, then the rate of discounting is bound to be less. Am I clear? ठीक है. अब एनपीवी को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए. A project requires a cash outflow of rupees 1 lakh and is expected to generate the following, cash inflows over the next 5 years.
नीचे लिखिएगा, दो कॉलम बना लीजिएगा, ईयर और कैश इनफ्लोज। ईयर 1 20,000, ईयर 2 30,000, ईयर 3 25,000, ईयर 4 35,000, और ईयर 5 25,000। ठीक है, आगे लिखिएगा। द डिस्काउंट रेट इज assumed to be the discount rate is assumed to be 10%, full stop, नीचे लिखना, comment, whether the project should be accepted or not। ठीक है, देखिए मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है इसका, ठीक है, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका, ऐसे अगर आप देखिए, अगर आप इस प्रोजेक्ट के हिसाब से देखिएगा, पेबैक पीरियड के हिसाब से, तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिल रहा है, 20,000, सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है, थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है, कितना हो गया, 75 हुआ, चौथे साल में कितना मिल रहा है, यानी कि चौथे साल में लगभग आपका प्रोजेक्ट 3 साल 8 महीने के बाद आपका प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड आपको दे देगा ना। आप पेबैक पीरियड के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को क्या करते, एक्सेप्ट कर लेते, क्यों, क्योंकि बाकियों के रिस्पेक्ट में ये मान लिया जाए कि बाकियों के रिस्पेक्ट में इस प्रोजेक्ट का जो पेबैक पीरियड था वो कम था। ठीक है, अब आइए हम लोग ये देखें जो हमने क्वेश्चन लिखा कि उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के सहारे क्या हम लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की स्थिति में है। मैंने क्या बताया था, मैंने ये आप लोगों से शेयर किया कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव है तो आप इसको रिजेक्ट करेंगे, अगर जीरो है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो नाम ही है नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज हुआ है, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में, सबको ईयर 1 के बिगिनिंग में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर वैल्यू कैलकुलेट करना है। किस पे वैल्यू कैलकुलेट करना है, ईयर 1 के बिगिनिंग में। क्यों, क्योंकि ईयर 1 के बिगिनिंग में आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है और वही अभी का प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट, क्योंकि अभी हम लोग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर आज मैं किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए अभी लगा रहा हूं, तो आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जो भी मेरे पास कैश इनफ्लो आएगा वो तो फ्यूचर में कैश इनफ्लो हुआ ना, उसका आज के डेट में क्या वैल्यू है, 5 साल बाद जो मेरे पास पैसा आएगा उसके आज के डेट में क्या वैल्यू, राइट, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए बड़ा आसान है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग
रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। यहां पे आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ठीक है, ये वैल्यू आप पहले निकाल देंगे। तो हमारे पास रेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 यानी कि 110। तो 10/110 अगर आप करेंगे तो शायद ये 0.0909 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझो, चीजें बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूं, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, करते रह जाइएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर 15% होता तो 15/115 वो डिवाइड करके ये वैल्यू आप निकाल लेते। क्लियर है? अब फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर हम लोगों को करना क्या है? 1 माइनस ये जो वैल्यू आया 0.0909, ये कर देना। ये कितना आ गया? 0.91 आएगा क्या? देखो तब कितना आ रहा है? 99091 ये आया। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, फर्स्ट ईयर में माइनस करने का वैल्यू ये आया। अब यही वैल्यू उठा के सेकेंड ईयर 0.9091 माइनस 0.0909, बताइए कितना आ रहा है? 0.89 8182 आ रहा है ना? .8182 यही आ रहा है। अब थर्ड ईयर में क्या करना है? 0.8182 माइनस 0.0909 कितना आ रहा है? 0.7272। समझ रहे हैं? हर साल यही करना है, जो भी फिगर दिया रहे उसका पहले ये निकाल लेना है, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आए उस पर से इसको माइनस करते जाना है। फोर्थ ईयर क्योंकि पांच साल का दिया हो तो 5 साल निकालना पड़ेगा। तो 0.7273 माइनस 0.0909 कितना आ रहा है? 0.6364। फिफ्थ ईयर में कितना आ रहा है? 0.6364 माइनस 0.0909 कितना आ रहा है? 5455। अब देखिए ये हमने किया, पहले इसको समझिए। ये हमने किया 1 रुपए जो आपको आज से 5 साल के बाद, यानी कि आज से 1 साल के बाद जो मिलेगा 1 रुपए, उसका आज के डेट में वैल्यू कितना होगा? समझ रहे हैं? आज के बाद जो आपको रुपए मिलेगा 2 साल के बाद, उसका वैल्यू आज के डेट में क्या होगा? समझ रहे हैं?
5वें साल के अंत में जो आपको पैसा मिलेगा 1 रुपए, उसका वैल्यू आज के डेट में क्या होगा, समझ रहे हैं? ये जो आया है ये वैरी करेगा डिस्काउंटिंग के रेट के ऊपर। किसके ऊपर? जितना ज्यादा डिस्काउंटिंग का रेट बढ़ाती जाइएगा उसका वैल्यू घटता चला जाएगा। उसका वैल्यू क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा, घटेगा ना। और जितना वैल्यू डिस्काउंट रेट कम होगा उतना वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? ये हमने स्टेप 1 किया। स्टेप 2 अब आप देखिए। स्टेप 2 फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितना मिल रहा है इस प्रोजेक्ट से? 20,000। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो रहा है। इसीलिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड ईयर का वैल्यू कितना है? 18,194। ये थर्ड ईयर में कितना था? 25,000 था क्या? ऐसे मत करो नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ होगा। सही से बताओ। 18,182। थर्ड ईयर में ये इनफ्लो कितना था? 4th ईयर में 35,000 और 5th ईयर में इसको मल्टीप्लाई करके सबका वैल्यू हमको बताओ कितना कितना आ रहा है। पहले मल्टीप्लाई कर लो आराम आराम से और फिर बताओ। हाँ 24,546 थर्ड का। देख लो दोबारा से कर लो। 18,182.5 को छोड़ दो और बोलो आगे। 22,200। कोई और कंफर्म करो इसको। कितना? 13,600। तो इसको 38 कर देते हैं क्योंकि 0.5 वहां पे हम लोग छोड़ दिए। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। हमने जो 5वें साल के अंत में आपको 25,000 मिल रहा था उसका आज के डेट में वैल्यू कितना है? समझ गए? अब क्या करेंगे? ये सब एनुअलाइज्ड बेसिस पे हमने फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सब ऐड करेंगे। ये क्या निकल के आएगा? समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। 6 2 8 2 10 4 14, 14 और 8 22, 8 2 10 4 14 8 22 2 10 4 14 14 8 22 22 और 7 29 और 3 32 2 3 4 5 9 9 1 10 10 तो 12 12 6 18 1 9 4 13 13 8 21 21 और 2 23 23 और 3 26 2 3 2 5 6 2 8 और 1 9। समझ गए? ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो कितना आया? 96,822। अब प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कैसे निकालते हैं देखिए। एनपीवी इज इक्वल टू
present value of future cash inflow minus present value of cash outflow। तो अब ये समेशन कितना आया? 96,800 और जा रहा था कितना अभी? तो कितना आया? 3,178 माइनस में है। तो एनपीवी क्या हो गया? एनपीवी क्या हो गया? नेगेटिव। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट होगा। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही वैल्यू पॉजिटिव आता तो एक्सेप्ट होता। पेबैक पीरियड में हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे थे और यहां पे क्या आ गया? रिजेक्शन आ गया। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ डिस्काउंटिंग टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। आपको देखने में अमाउंट कितना बड़ा लग रहा था, 5 साल में आप देख रहे थे कितना टोटल हो गया? टोटल काउंट तो कितना हो गया? 50, 50 और 60, 1 लाख, 1, 10, 1,35,000। यानी कि 35,000 वैल्यू आपको ज्यादा आ रहा है। समझ गए? डिस्काउंटिंग करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू जो आपने निकाला वो क्या हो गया? कम। समझ में आया क्लास की नहीं आया? तो यही तो है, यही तो फर्क बता रहा है कि पेबैक पीरियड में तुमको वो क्वालिटी ऑफ कैश इनफ्लो को कंसिडर नहीं करता है, टाइम वैल्यू को एडजस्ट ही नहीं करता है। इसमें टाइम वैल्यू को एडजस्ट किया। 5 साल के बाद जो 25,000 रुपया आपको मिलेगा 10% से डिस्काउंटिंग की जगह, तो आज के डेट में उसका वैल्यू ये है। आया समझ में? क्या? हाँ तो नहीं करोगे ना, नहीं करोगे तो बताया ही गया है, बार बार बता रहे हैं, आज भी बताए हैं चीज। पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो था वो तो ट्रेडिशनल तरीका था, जब ये मेथड नहीं आया था। तो फॉर्मूला है रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। अगर ये 12% होता तो 12/112 होता, डिवाइड करके जो वैल्यू आता सब जगह लिखते थे। समझ गए? या सुनो, चलो ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कर रहे हैं, सबको वेट करो।